Hello dear students. So welcome to this second part of the rescission of contract topic. We were covering this last topic of Specific Relief Act 1963. So before resuming this topic, I am going to appeal to the viewers and the students to please like, share and subscribe to my YouTube channel so that you can get the new updates, new videos of my lectures. So let's resume the topic. So we covered the who can apply for rescission of any contract, that is section 27, which is provided under section 27. Next, who can rescind. So here we covered the point, that is who can rescind the contract, rescission की power किसके पास है, and then we saw that the court has a power for rescission of contract. So court has a power, but power cannot be exercised arbitrarily. So power, in some cases court has a power. So when the court has power, we had covered in last part. Now in this part we are going to cover in which situation the court cannot order for rescission of contract. So we are going to deal it one by one. Let's start. When plaintiff ratify the contract. When plaintiff ratify the contract, it is covered under section 27, subclause 2, subclause A. In this, the meaning of the part of the rescission of contract is that when plaintiff ratify the contract, when defendant does some unlawful act, does some unlawful activity, and plaintiff came to know about that unlawfulness, then plaintiff ratify it. Plaintiff said, okay, it happened, but let's continue, let's resume the contract. प्लेंटिफ ने उसे ओके कर दिया. प्लेंटिफ की नॉलेज में वो अनलॉफुलनेस आ गई कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन फिर भी प्लेंटिफ ने उसे ओके कर दिया. अब उसके बाद वो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फाइल नहीं कर सकता. एक बार अगर उसने रेटिफाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसके बाद वो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ऑर्डर नहीं कर सकता. इसके लिए आप लॉन्ग वर्सेस लॉयड के केस को एक बार रेफर कर सकते हैं. लॉन्ग वर्सेस लॉयड, ये केस लॉ इज अबाउट दिस पॉइंट. Next point is when restitution is not possible. What is the meaning of restitution? Restitution means if the contract came to an end, then the property of the contract by the other party is restituted back, given back to the other party. अगर उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, कोई प्रॉपर्टी ली हुई है, तो उसे वापस करनी पड़ेगी, वो प्रॉपर्टी रेस्टिट्यूट करनी पड़ेगी. सो अगर रेस्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर कोर्ट नहीं दे सकती. यहां पर एक बात है, रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है. इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं. लेट सपोज एक लेडी है, वो किसी दुकान पे जाती है और वहां पर एक सिल्क क्लॉथ का कपड़ा मांगती है. वो कहती है कि मुझे सिल्क क्लॉथ का कपड़ा दे दो ताकि मैं इसका सूट बना सकूं. तो दुकान वाला कहता है, ये लीजिए, ये कपड़ा है. सो अब वो उस कपड़े को लेकर के टेलर के पास जाती है और वहां पर उसे कहती है कि ये सिल्क क्लॉथ है, इसका आप एक सूट बना दो. देन आफ्टर दैट सूट वॉज स्टिच्ड बाय द टेलर. टेलर सूट को स्टिच कर देता है. स्टिच करने के बाद यह बात पता लगती है कि वो कपड़ा सिल्क का था ही नहीं. अब उस दुकानदार के खिलाफ जो लेडी है, वो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं डाल सकती. क्यों? क्योंकि अब उस क्लॉथ की नेचर चेंज हो चुकी है. अब वो क्लॉथ नहीं रहा, वो सूट बन चुका है. सो यहां पर रेस्टिट्यूशन पॉसिबल ही नहीं है. सो ये क्लॉथ ऑफ सिल्क वाली जो एग्जांपल है, ये आप छोटा छोटा लिख लें इसके साथ, तो यहां पर आपको पता लग जाएगा. नाउ इफ द रेस्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल, देन रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर कैन नॉट बी गिवन. इन द नेक्स्ट पॉइंट, when third party acquires right in the subject matter in good faith. If the third party acquires some right in the subject matter in good faith, then also the rescission of contract order cannot be given by the court. Let's suppose in this you can refer the case of Phillips versus Brooks. In this case, there is a person who
went to a jewelry shop and misrepresented him as a very famous person in a society, और उसके एवज में वो उससे एक अंगूठी उधार पर ले लेता है, उसे कह देता है कि पेमेंट मैं बाद में आकर के कर दूंगा। ज्वेलर भी उसकी बातों में आकर के उसे वो अंगूठी दे देता है, और वो अंगूठी ले जाकर किसी थर्ड पर्सन को बेच देता है। वो थर्ड पर्सन उससे वो अंगूठी गुड फेथ में खरीद लेता है। अब उसका राइट तो बन गया, उसने गुड फेथ में खरीद लिया। बाद में जब पुलिस उसको पकड़ती है तो वहां पर थर्ड पर्सन ने अपना राइट गुड फेथ में एक्वायर किया हुआ है, तो वहां पर उसकी रेस्टिट्यूशन, उस अंगूठी की रेस्टिट्यूशन, रिस्टोर बैक नहीं हो सकता। सो द कॉन्ट्रैक्ट, द ऑर्डर फॉर रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी गिवन बाय द कोर्ट। इन द लास्ट पार्ट, that when the part of contract is to be rescinded and such part cannot be severable from whole contract। ऐसा कोई केस हो जहां पर आधा पार्ट तो परफॉर्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट का आधा पार्ट परफॉर्म हो चुका है। लेट सपोज वीट खरीदने का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, और वीट खरीदने का, लेट सपोज 1 क्विंटल वीट खरीदना, 100 केजीज ऑफ वीट को खरीदना है, और 50 केजीज ट्रांसफर हो चुकी हैं, 50 केजीज दिया जा चुका है, पैसे पूरे पे हो गए हैं, 50 केजीज ट्रांसफर दिया जा चुका है, और 50 केजीज अभी आने हैं। तो 50 केजीज हो चुका है, और अगले 50 केजीज के लिए अगर पार्टी मना कर देती है तो वो जो अगला बैच है 50 केजीज का, उसके पहले बैच से कोई लेना देना नहीं है, वो सेवरेबल हैं, एक दूसरे से सेवरेबल हैं वो पार्ट। तो एक पार्ट जो दूसरे पार्ट से सेवरेबल है तब तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, लेकिन अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट से सेवरेबल नहीं है तो कोर्ट उसे ऑर्डर नहीं कर सकती। लेट सपोज दैट यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ मेडिसिन। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो मेडिसिन बनाती है उसके लिए वो केमिकल्स मंगवाती है। अगर वो केमिकल्स मिला करके उन्होंने मेडिसिन बना दिया, बाद में पता लगा कि उसके अंदर ऐसा केमिकल मिला दिया गया है जो अनलॉफुल है, या फिर अनलॉफुल मात्रा में मिला दिया गया है, उतनी मात्रा में अलाउ नहीं किया इंडियन गवर्नमेंट ने उस केमिकल को मिलाना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बाद में रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑर्डर कर सकते, क्योंकि मेडिसिन से उस केमिकल को निकालना इम्पॉसिबल है, उस कांट बी सेवरेबल। सो हियर इन दिस केस द कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर फॉर रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और आगे बहुत सारी रेमेडी हो सकती है उन सब केसेस में, कंपनसेशन वगैरह, लेकिन रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी वहां नहीं मिल सकती अगर वो पार्ट सेवरेबल नहीं है। इसके बाद हम सेक्शन 28 को करेंगे। सो अंडर सेक्शन 28 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अंडर रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, it is given that actually the main heading of this section according to the Bayer Act, the link of that Bayer Act is given with this description also, with this video also under the description. The main heading of this section, section 28, says rescission in certain circumstances of contracts for the sale or lease of immovable property, the specific performance of which has been decreed। मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिक्री, जो सेक्शन 9 to 25 हमने पहले किया था, उसकी डिक्री कोर्ट ने पास कर दी है फॉर द सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी और लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेल और लीज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को कोर्ट ने पास कर दिया है। उन केसेस में रेसिशन कब ऑर्डर किया जा सकता है, उन केसेस में रेसिशन कब ऑर्डर किया जा सकता है। सो अगेन मैं रिपीट करता हूं, उन केसेस में जहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिक्री कोर्ट ने पास कर दी है, जो हमने सेक्शन 9 to 25 में डिस्कस किया था, वहां पर कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिक्री को पास कर दिया है। और वो कौन से केसेस हैं, वो सेल या लीज के केसेस हैं ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो उन केसेस में रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कब पास किया जा सकता है, ये स्पेसिफिकली सेक्शन 28 में प्रोवाइडेड है। ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू इन जुडिशरी एंड ऑल्सो फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन यूनिवर्सिटी एग्जाम। आइए देखते हैं। सो इन कब पास हो सकती है, जब लैप्स ऑफ टाइम हो जाए, मतलब टाइम खत्म हो जाए पैसे पे करने का। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सो सेक्शन 28 लैप्स ऑफ टाइम में, वेयर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑर्डर्ड, where the specific performance of contract is ordered, section 9 to 25, by court of sale or lease of immovable property, sale or lease of any immovable property, ये immovable property के लिए sale of lease of immovable property, and lessee
and lessee does not in stipulated time pay the lease amount. डिक्री तो पास कर दी, कोर्ट ने कहा ठीक है पैसे दीजिए और लीज प्रॉपर्टी को ले लीजिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा लीजिए, लेकिन उसने स्टिपुलेटेड टाइम में लेसी ने पैसे नहीं पे किए लेसर को, देन लेसर में आस्क फ्रॉम द कोर्ट टू रेसेंड द कॉन्ट्रैक्ट. तब लेसर जो है वो कोर्ट में रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए केस फाइल कर सकता है. ये सेक्शन 28 में प्रोवाइडेड है. अब इसमें मैं देखता हूं देखते हैं हम लोग कि कोर्ट में कौन कौन सी रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है, किन कंडीशन में. रिलीफ व्हेन लेसी पेड द लीज अमाउंट. अगर लीज अमाउंट लेसी ने पे कर दिया तो कौन सा रिलीफ. द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर कन्वेंस. तब कोर्ट ऑर्डर कर सकती है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर कन्वेंस, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो लीज के हैं, जो सेल के हैं, उन्हें वो प्रॉपरली बनाए जाएं, दिए जाएं. डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू परचेजर और लेसी, मतलब पोजेशन, प्रॉपर्टी की पोजेशन जो है वो लेसी को या जो परचेजर है उसको दे दी जाए अगर उसने अमाउंट पे कर दिया. रिलीफ व्हेन द लेसी डज नॉट पे द अमाउंट. अगर अमाउंट पे नहीं किया, डज नॉट पे द अमाउंट, इन सच केस द कोर्ट शैल डायरेक्ट द लेसी. In such case, the court shall direct the lessee to restore back the lesser the lease property. तब कोर्ट जो है वो shall यहां पर कोर्ट करेगी ही करेगी किसको, लेसी को. ये ऑर्डर करेगी कि जो लीज प्रॉपर्टी आपके कब्जे में है उसे आप लेसर को वापस कर दीजिए. और may order to give back all the payment, rent, profit obtained during the possession by lessee to lesser. और ड्यूरिंग द पोजेशन, जो प्रॉपर्टी की, जो लीज प्रॉपर्टी की पोजेशन में जो लेसी ने जो भी अमाउंट, प्रॉफिट या रेंट जो भी लिया है उसे वो वापस करने का ऑर्डर भी कर सकती है. यहां पर डिस्क्रिशन है में, यहां पर ऐसे ऑर्डर्स कोर्ट पे कर सकती है. सो आई सपोज कि ये आपको ये एज ए बेयर एक्ट को आप पढ़ेंगे तो काइंड ऑफ डिफिकल्टी में फेसिंग, लेकिन इस टेबल से आप देखेंगे इसको आपको पूरी तरीके से ये सेक्शन 28 कंप्लीटली क्लियर हो जाता है कि सेक्शन 28 में ये चीजें प्रोवाइडेड हैं. इससे कंफ्यूज ना करें, ये बहुत ही सिंपल सेक्शन है. आगे हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे. नेक्स्ट हम डील करेंगे सेक्शन 29 से. सेक्शन 29 व्हाट इट सेज. सेक्शन 29 सेज अल्टरनेट प्रेयर फॉर रेसिशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जो हमने पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी जो और अदर रिलीफ्स की हैं, उन रिलीफ्स में जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जब सूट फाइल होता है तो वहां पर पार्टी अल्टरनेट रिलीफ में अपनी प्रेयर में रेसिशन को अल्टरनेट रिलीफ मांग सकती है. यानी कोर्ट से वो कह सकती है कि हमें या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराई जाए या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड कर दिया जाए, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो वहां पर पार्टीज जो है वो रेसिशन अल्टरनेट ऑप्शन के तौर पर प्रेयर में मांग सकती हैं. ये सेक्शन 29 के अंदर प्रोवाइडेड है. सो नेक्स्ट ये सेक्शन 30, इसको रीड आउट करते हुए हमको समझ में आ जाता है. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल सेक्शन. इसके अंदर क्या प्रोवाइडेड है, कोर्ट में ऑर्डर पार्टीज गेटिंग द डिक्री ऑफ रेसिशन टू रिस्टोर बेनिफिट और टू डू इक्विटी. मतलब जिस पार्टी के फेवर में कोर्ट रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर पास कर रही है उसको पार्टी कह सकती है. यहां पर वर्ड में यूज हुआ है, में. सो कोर्ट उसको कह सकती है कि इक्विटी करो और जो बेनिफिट तुमने लिए हैं वो बेनिफिट वापस कर दो उस पार्टी को जिसके खिलाफ रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर पास हुआ है. बाय रीडिंग दिस सेक्शन यू कैन अंडरस्टैंड. ये इसकी रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो इसके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विद द अमेंडमेंट एक्ट की लिंक दी हुई है उसके बेयर एक्ट की. Section 30 says court may require parties rescinding to do equity. On adjudging the rescission of a contract, the court may require the party to whom such relief is granted to restore, so far as may be, any benefit which he may have received from other party, and to make any compensation to him which justice may require. तो कोर्ट ऐसे भी ऑर्डर पास कर सकती है. इसको आप बहुत सिंपली से समझ सकते हैं. तो यहां पर हमारे रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सारे के सारे रिलीफ खत्म होते हैं। सारी आई होप आप सारी वीडियोस जो पीछे मैंने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर बनाए हुए हैं वो आपने सारे देखे हैं और आपको सारी रिलीफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियरली हुई है। इनमें कुछ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं बेयर एक्ट से पढ़ने पर। मैंने यही कोशिश करी है कि टेबुलर फॉर्म में आपको जितनी आसानी हो सके पढ़ने में उतनी आसानी हो। I hope all the viewers, all the students understand the Specific Relief Act 1963 very clearly. In the end, I want to lastly appeal to the viewers and the students to kindly like, share and subscribe to my YouTube channel so that all videos can reach out to all these other students who wants to prepare for a Specific Relief Act for their university exam. So best of luck for your exam. Thank you.